Hello everyone, let us have a look what I have brought for you. It's a very important and as well as very interesting topic for you all. I have taken this topic from class 9 science and chapter is motion. So first video I have just brought, it's a science video, I must tell you. So please, if you have not subscribed yet my channel, please do like and subscribe. आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिस्टेंस, displacement and what is the basic difference between distance and displacement. So these 3 points will be discussed here. So first I will discuss distance. तो आइए नज़र डालते हैं distance क्या होती है। तो डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें हम, तो डेफिनेशन एज इट इज रिटन यू मस्ट बी नोइंग एंड यू मस्ट बी जस्ट वॉचिंग इट हियर। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by a body. So actual length of path means what? Suppose anybody point it is A here and anybody is going like that, you see. So suppose this is point A, this is point B, this is point C, and then after that this is point D. So you see, so these are the point. The distance between A and B, just you suppose it is 2 meter. The distance between B and C, it is what? 1 meter. And I just consider the distance between C and D, that is 2 meter. Suppose there is a boy and his name is Ram and he is just standing at a position A and he wants to go here. To till means till D he wants to move. He wants to cover the distance. So from A to T he will reach. What distance he will cover and how he will just reach there. So you see, this is the path. So obviously this will he will follow this path and through this path, along with this path he will just move. So first he will go to A to B and that is, so he will cover 2 meter distance. So you see, then after that again he will go what? B to C. Towards the what? South direction. So B to C. So B to C, if he is moving again, then there is a path and the distance is what? 1 meter. Then after that again he is going from C point to what? D point. तो देखिए C से D जा रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 2 मीटर. तो अगर हम बात करें कि what distance, total distance has been covered by this Ram to reach A, sorry, to just from A to रीच डी. तो देखिए ए से डी जाने में इसको कितना जो है आपका जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ा है. तो सबसे पहले देखिए ये ऐसे गया है यानी 2 मीटर कवर किया, फिर ऐसे गया यानी 1 मीटर और किया और फिर उसके बाद ऐसे गया मतलब 2 मीटर और किया. और डेफिनेशन से आप देख सकते हैं इट्स रिटन वेरी क्लियरली द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट पे अटेंशन. एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ मतलब जो वास्तविक डिस्टेंस कवर किए गए, जैसे जैसे वो राम चला है उस पाथ पे, तो राम कैसे कैसे चला है, ऐसे ऐसे ऐसे. सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज व्हाट? दिस plus this distance has been covered. So we will add together and 2 meter plus 1 meter plus 2 meter, that will be what? 2 plus 1, that is 3. 3 plus 2, that is what? 5. So 5 meter is the distance, total distance covered. So we will write here total distance covered equals to, total distance covered is equals to what? 2 meter plus 1 meter plus 2 meter, that is 5 meter. So by that way we can just define this. So actual length of path. Here also one example I have just made that I wanted to tell you. Now you see in this example there is a boy who is having a one bicycle. I have just made it, so please appreciate me. I will be coming with the several kind of diagrams, I know this. So this I have made all this diagram. So you see how it is looking. Please do comment just in my YouTube channel and write it how it is. So you see there is a boy and I will take any name. So suppose this, he is Sohan. His what? His name is Sohan and Sohan is having one bicycle and he is standing near point A. You must be getting here, it's written. Now what to do? He is outside from the home, you must be getting home is here. So he is not inside the home, you can see he is outside. तो ये बंदा जो है आपका, ये सोहन जो खड़ा है, ये ए पॉइंट के नज़दीक में कहीं खड़ा है और ये जाना चाहता है अभी फॉरेस्ट. और यू मस्ट बी नोइंग इट्स मैंगो सीजन, तो अभी पेड़ में मैंगो भी मिलते हैं. तो ये बेचारा जाना चाहता है आपका ए से बी और बी के पास क्या है, इसका ये आपका मैंगो ट्री है. तो ही वॉन्ट्स टू गो ए टू बी, बट इफ ही जस्ट मूव अलॉन्ग विद दिस पाथ ए बी, देन ही हैज़ टू कवर डिस्टेंस व्हाट?
5 meter. So he is ready to cover that. So he is going from A to B and now he is reached here. Then after that what he is doing, देखिए इसके बाद क्या करेगा, तो ये B पॉइंट से मान लीजिए अब यहाँ पे ये पेड़ को देख लिया, आम इसका ठीक है, मैंगो सब कुछ. अब he wants to go to home. So now you see what to do. Again he will have to start by cycling from B and then from B to C. If he is reaching, then he will reach to home, because near C his home is there. You can see how beautiful home I've just made. So if he has to go B to C, then he will just cover 3 meter distance. तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि ये सोहन आपका A पॉइंट से निकला और B तक गया और B से गया और B से कहाँ तक गया, C. So if you talk in this example, what is the total distance covered? Total distance covered. So what is total distance covered? Total distance covered will be what? This AB plus this what? BC. Don't pay yes, must pay attention here. Don't be confused, because he has just covered the distance is what? A to B and B to C only. There is no relation between here A to C. So total distance covered by him is what? AB plus BC, that is 5 meter plus that is 3 meter. So it is what? 5 plus 3, 8 meter. So the distance covered is what? By Sohan, 8 meter. Now you think in this example only. Now after going home, again he will take what? Food, as we do. हाँ, घर में खाना खाते हैं और फिर बाहर जाके हाथ को सुखाते हैं. हाँ, hands will get dried up. So if he wants to go outside again and from point C, if he wants to go A, मतलब ये देखिए A से चला था, B पे पहुंचा, B से फिर चला, C पे पहुंचा और C से फिर चला है बच्चा और फिर घर से बाहर निकला है और फिर यहाँ पे पहुंच गया है. यहाँ पे एक शॉप है, मान लीजिए शॉप पे अपना जो इधर उधर करना है इसको, तो ये he will just reach to C to A. In this condition, what will be the total distance covered by Sohan? Obviously, it will be what? Total distance covered will be what? Total distance covered by Sohan will be what? You see, this AB plus again this BC, then plus what? This CA, because the actual path which along with which he has just moved, that is what? AB. ये रास्ता था, ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे आया और फिर ऐसे आया. तो this will be AB plus BC. So AB is 5 meter plus this BC is 3 meter plus that is 4 meter. So we will add it. 5 plus 3, 8. 8 plus 4, that is what? 12 meter. So in this condition, the total distance has been covered by that Sohan is what? 12 meter. So you have seen that now by the definition it's clear. The distance means what? It is actual length of path. So you can find the distance by this way. 2-3 examples I have shown you. Then after that, let us have just look what second point I have just written here. That is what? First you see, this is first point about distance. So it is what? A scalar quantity. It is a scalar quantity. I must tell you, first it is physical quantity, then after that it's स्केलर क्वांटिटी. एंड व्हाट डज इट मीन स्केलर? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मीन्स क्वांटिटी इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. तो देखिए ये जो डिस्टेंस होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 12 मीटर लिखा है, एंड दैट्स 12 इज व्हाट? मैग्नीट्यूड. 12 मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा ना, दैट इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड. हियर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 8 इज मैग्नीट्यूड. सो हियर व्हाट? So like that 5 is magnitude. So it is having only magnitude. So it is called scalar quantity. अब अगर बात करें next point का, तो SI unit, what is that? That is meter, and we can write it in short form, that is M. हम लोग इसको मीटर लिख सकते हैं SI unit. Distance may be measured in kilometer, may be measured in centimeter. Centimeter, yes, it is a short one, but it can be. So in whatever meter, but the SI unit, if you talk, then it is meter. तो वो मेजर किसी चीज में भी किया सकता है. I don't say like that. Pay attention. It is a SI unit. Then after that, what? It is measured by odometer in vehicles. And now you see, this is a tools, or we can say device. In vehicle, you just find this. It is given. It must given. So it is a device through which we can measure the what? Distance. So distance, to measure the distance, which device will be used? That is odometer. In vehicle it is used. Then after that, what? It remains positive, cannot be zero or negative. It remains positive मतलब कहने का ये है कि डिस्टेंस आपको कभी निगेटिव नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा. Anybody can say -2 kilometer I have just gone yesterday? No.
How he can say -2 kilometer? As you must be knowing, the age cannot be a negative. Anybody cannot have a -2 years old, -20 years old. In the same manner, distance cannot be negative. और जीरो का मतलब तो देखिए, डिस्टेंस अगर होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, समथिंग. If you have moved something, means if you moved for a bit, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आपने तय किया होगा, चाहे वो 2 मीटर हो, चाहे 2 मिलीमीटर हो, या फिर सेंटीमीटर हो, या फिर वो किलोमीटर हो. सो इट कैन नॉट बी जीरो और इट कैन नॉट बी निगेटिव. समथिंग इट विल बी, आई मीन टू से इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा. तो दोस्तों, मैंने देखा इसमें डिस्टेंस के बारे में सारा कुछ. लेट अस हैव अ लुक. आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. So as you can see, it's written here very clearly, displacement. So second topic is our topic is displacement. तो देखिए displacement कैसे हम लोग करते हैं. तो it's first I will just read the definition. It is the shortest distance between two fixed points. It is the shortest distance between two fixed points, and who are the points? That is can be said as a initial and final points. So let us have a look, one example just I have written. So how to make this question. देखिए इसमें है क्या कि फिगर को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है वहाँ से. अब देखिए कि साइकिल इस पोजीशन पे खड़ा है, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है. और यहाँ का कंडीशन मैं आपको पहले बता दूँ कि बंदा यहाँ खड़ा है, देख रहे हैं, आपका घर से निकलना है. ये अभी जो है वो घर के अंदर है. ए पॉइंट से यहाँ से कोई आदमी निकलेगा, मतलब सपोज राधा हैज़ कम आउट. सो राधा हैज़ कम आउट. सो राधा यहाँ ए से निकली है और राधा को ये अब जानी है कहाँ पे, इस ट्री के नज़दीक में. दैट इज पॉइंट बी. एंड फॉर दैट व्हाट डिस्टेंस सी विल कवर? सी विल कवर ए टू बी. इफ सी गोज then 4 kilometer distance she has to cover, because the actual length of path is what? A to B, that is 4 kilometer. अब देखिए ट्रीज के पास जाने के बाद राधा को याद आ रहा है क्या, उसकी साइकिल खराब हो गई थी और वो साइकिल को एक मैकेनिक को ठीक करने के लिए दी हुई थी. तो सी वांट्स टू जस्ट कैरी दैट साइकिल फ्रॉम दैट व्हाट दैट मैकेनिक पर्सन. तो राधा को याद आती ही राधा चल पड़ी सी के तरफ, जहाँ पे दुकान है साइकिल रिपेयरिंग की. एंड सी इज रीच टू पॉइंट सी, एंड फॉर दैट सी कवर्ड डिस्टेंस दैट इज व्हाट 3 किलोमीटर. देखिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आई है साइकिल लेने. पहले आई नहीं थी, अब आ चुकी है. तो देखिए इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय राधा, then what will be the distance covered? You pay attention. If I talk about the distance covered by the Radha, so it is what? A to B, C has gone A to B, so AB distance. Then after that B to C, so plus BC. तो अगर distance का मैं बात करूं तो AB is 4 kilometer and this BC is what? 3 kilometer. So all together it is what? 7 kilometer, and that is the distance. तो ये डिस्टेंस तो आपका हो गया 7 किलोमीटर. लेकिन वी हैव टू जस्ट फाइंड योर व्हाट डिस्प्लेसमेंट. So I wanted to just make you clear what is the difference. So I just found just got here distance. Now we are going for displacement. Displacement. So you see displacement. How I will just find displacement. देखिए अब as per definition you see it is the shortest distance. अब ये बताइए राधा पहले कहाँ थी? राधा यहाँ खड़ी थी. राधा वॉज स्टैंडिंग हियर. अब राधा अभी कहाँ खड़ी है? राधा इज स्टैंडिंग हियर नाउ. सी अब देखिए राधा यहाँ से निकली थी घर से अपने और अभी यहाँ पे, तो इसको घर आने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यू जस्ट थिंक ओवर इट. देखिए हमेशा स्ट्रेट पाथ जो होती है ना वो आपका हमेशा शॉर्टेस्ट होता है. सपोज कोई आदमी यहाँ से निकलेगा और ऐसे करके मान लीजिए घूम करके ऐसे करके घूम करके ऐसे करके यहाँ तक पहुँचेगा. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. तो अगर ये इसका शॉर्टेस्ट ए से अब यहाँ पे बी पहुँचने के बाद आदमी चला तो गया है, ऐसे 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 पहुँच तो गया है इस बी पॉइंट पे. बट इफ ही वांट्स टू रिटर्न बैक देन हाउ ही विल रीच एंड ए वेरी शॉर्ट वे. तो देख अगर बात करें यहाँ से और यहाँ तक के शॉर्ट वे का, तो देखिए क्या ये स्ट्रेट लाइन अगर हम मिला दें, ऐसे ज्वाइन कर दें, तो इज इट अ शॉर्ट वे टू रीच हियर? हाँ ऑब्वियसली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है आपका द स्ट्रेट लाइन जो है आपका वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इफ यू टेक अ कर्व्ड पाथ अलॉन्ग विद द कर्व पाथ, इफ यू मूव, इट इज व्हाट? इट इज means distance, and this is what? Displacement. This is the shortest distance between this A and B. अगर ये सीधा डिस्टेंस से आती है तो A तक पहुंच सकती है और सबसे कम दूरी तय करके, and that is the least distance means shortest distance between two points means initial, this is, and this is final. So this is initial point and this is what? Final point. So
we can say also displacement is a what difference between final point minus initial point, final point and initial point ka difference. So displacement can be s, it is represented by s. You must see displacement is represented by s and arrow will be there because it's a vector quantity. I am just coming to the point, so we will represent by that way. तो अगर ये लिखेंगे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये आपका ए बी हो जाए, सॉरी ये ए बी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपका ये, तो एरो के साथ हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को. तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसको हम लोग ऐसे करके भी यहाँ दिखाना चाह रहे थे हम कि इट कैन बी रिटेन एज अ फाइनल पॉइंट माइनस initial point, final position minus initial position can be also said. So distance and displacement, by the definition you have seen displacement. Here you see how to find. तो अगर ये देखिए straight path मैंने draw कर रखा है, तो this is obviously the straight distance and the shortest distance between A and C. तो ये कैसे निकालें हम? तो इस ट्रायंगल को देख करके आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड यू कैन जस्ट सी हियर इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, देन पाइथागोरस बाबा इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. मतलब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या कर सकते हैं, इसका आप लोग हम लोग AC निकाल सकते हैं. बिकॉज यू नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज जस्ट इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. मतलब बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनस स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो S विल बी जस्ट इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर्ड is it is S is a what here, AC. So first you write S equals to AC equals to what, this is AB squared plus BC squared. और अगर आप इधर स्क्वायर नहीं लेते हैं बिकॉज फॉर्मूला इज व्हाट, AC squared इक्वल्स टू AB squared plus BC squared, and if you do not take here square then it will be written as what, AC equals to what, AB squared plus BC squared अंडर रूट. तो ये स्क्वायर नहीं लेंगे तो ये अंडर रूट चल जाएगा वैल्यू आपका. तो देखिए ये AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो रूट AB कितना, तो रूट अंडर AB इज व्हाट 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस दिस BC इज व्हाट 3, सो 3 का स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9. तो ये रूट अंडर आपका 25 हो जाएगा एंड हेंस द आंसर हैज कम दैट इज 5. तो देख सकते हैं 5 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. सो AC द डिस्टेंस ऑफ AC इज 5 किलोमीटर, हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 5 किलोमीटर. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो था वो शॉर्टेज डिस्टेंस था इस AC के बीच का, और AC का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है. तो डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल सकते हैं. बट यू मस्ट पे अटेंशन, Radha started moving from A to B, he just series to B and then after B to C. So this displacement I have got. अब अगर देखिए इसी में एक और कंडीशन अगर लगा दे, अगर राधा यहाँ पे C पे गई साइकिल लेके फिर वापस अगर घर आ जाती, तभी जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, पे अटेंशन, दैट इज शी वॉज नियर दैट शॉप, मैकेनिक शॉप, एंड फ्रॉम देयर ओनली वी फाउंड द डिस्प्लेसमेंट हियर. अब सोचिए कि अगर राधा घर से निकली, बगीचा गई, बगीचा से यहाँ पे अगर साइकिल दुकान के पास गई और फिर साइकिल मरम्मत इसकी कंप्लीट हो जाती है और ये फिर वापस आ जाती है आपको घर के लिए. तो मतलब क्या कि राधा स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर एंड सी नाउ सी रीच टू अगेन दिस पॉइंट ओनली, मतलब ए पॉइंट पे पहुंच गया है. तो इस कंडीशन में अगर डिस्टेंस कवर्ड का हम बात करें कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय राधा, देन व्हाट इज दैट, AB प्लस BC. और ये देखिए ये भी डिस्टेंस कवर करके C से यहाँ पे A पे आई है, तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर दैट इज 7 किलोमीटर एंड प्लस 5 किलोमीटर दैट इज 12 किलोमीटर. तो डिस्टेंस यहाँ पे 12 किलोमीटर होगा. और इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, देखिए A से निकली थी और फिर से कहाँ पे पहुंच गई A, तो सेम पॉइंट के बीच में क्या होगा डिस्टेंस, द इनिशियल पॉइंट इज सेम, फाइनल पॉइंट इज सेम. मतलब जहां से निकली थी वहीं पे पहुंच गई है, मतलब जीरो डिस्टेंस. डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर कवर की, लेकिन अभी ए उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, S इज जस्ट इक्वल टू व्हाट 0. तो यहाँ पे पॉइंट को जस्ट नोट करें, अटेंशन दें कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं. तो वन कंडीशन आई हैव शोन यू व्हेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. देयर आर सेवरल कंडीशंस व्हेन displacement, the magnitude of distance and displacement will be equal, that condition when displacement is negative. So for that just I will make another video and I will be just sharing after that displacement. You have understood now how to just find it.
This is also a point which has to be discussed. It's a vector quantity. Vector quantity why? Because it is needed magnitude as well as direction. तो देखिए इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसके पास हो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास दोनों चीज होता है। तो इसीलिए यू मस्ट पे अटेंशन, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो किस डायरेक्शन में है वो, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 है तो कोई बात ही नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 किलोमीटर आया था तो टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स आपका ये देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस हिसाब से ये डायरेक्शन लगा दीजिए। तो लास्ट में अगर टुवर्ड्स ईस्ट है तो लिख देंगे टुवर्ड्स ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर आपका वेस्ट में है तो 12 किलोमीटर वेस्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन लिखना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नीडेड व्हाट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और देखिए डिस्टेंस में किसकी जरूरत थी, बस मैग्नीट्यूड की। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, मीटर इट इज देयर ओनली, एसआई यूनिट इज व्हाट, मीटर, द सेम थिंग इट इज देयर for the displacement, because displacement is what, also it is kind of one distance only na, shortest distance, so unit is same as a unit. Then after that it can be 0, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। सो जीरो वाला कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर कर चुका है कि किस कंडीशन में होगा। निगेटिव, पॉजिटिव, आई विल पॉजिटिव ऑल्सो यू हैव सीन दैट, निगेटिव फॉर निगेटिव आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन अनदर वीडियो। और ये दोबारा से लिखा गया एस यूनिट, दैट इट इज रिटन ऑलरेडी। सो एस आई यूनिट विल बी व्हाट, मीटर। तो इस तरह से आपने देखा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।